Peace and blessings, everyone. This is me, Saira Iqbal Khan, Lead Talent Acquisition and Management at OCLP, Office of Corporate Linkages and Placements at UMT. I welcome you all to this session, which has been organized by Office of Corporate Linkages and Placements under the vision of President UMT, Mr. Ibrahim Hassan Murad. We have launched this high impact, iconic, learning and development focused virtual career fair, Career Week 2021 on the theme of chasing the dream career. And the purpose of this entire week is basically to help students prepare, to emerge as marketable graduates for the future water walk. And this career week is one of its own kind because we have brought, best of the best employers and, gurus and speakers from the industry so that, they can orient the students about the expectations of the industry. Furthermore, we have also planned a lot of activities, including CV writing workshops, LinkedIn profiling, interviewing skills. In parallel, we are also having a session from Plan 9, largest incubator of Pakistan. Then there is going to be a virtual education expo, overseas education expo as well, and a lot of other activities. So yeah, this is the brief of the career week, and today's theme is basically time travel. And this session has been specifically designed for the students of Literature Institute, for the students of Institute of Literature, Liberal Arts. And session's name is Literature and Career in IR 4.0. Before initiating the session, I would like to give a brief introduction about the speaker, Mr. Khalid Naqi. Mr. Khalid Naqi is Director of Office of Corporate Linkages and Placements at UMT, and he has more than 30 years diversified international and national experience. He has, during his illustrious corporate career and his journey, he has been very specifically and aggressively using the imagination and creative skills of the students of arts and literature in the development and as well as promotion of his projects. So he's the right guy, the right person to talk to and to look towards and to look up to, for the advice. I will appreciate if the students can, interact and, can ask the questions very candidly so that they can get the candid answers. And it will be more a kind of engaging and interactive session instead of monologue. So I would like to now hand over the session to Mr. Khalid Naqi, and he will take it from there. Thank you. Thank you, Sarah, and Assalamu alaikum, everybody. So, Sarah, thank you for giving the nice detailed introduction and introducing the topic well. This is the age of time travel, and literature is all about making you travel from history to future. And through their writing skills, through their imagination, through their scripting skills, and by convincing people by writing about it, writing books, putting blogs, writing articles in the newspapers, making public appearances, doing excellent PR jobs, working with ad agencies, and creating promotional campaigns for the different products which are to be sold. Then you have introduced another concept of IR 4.0 and the literature. This is very interesting. IR 4.0, one of the main drivers, if you go into deep down detail, has been the imagination of literary people. And they have been writing so much, and we all are well aware of the concept that today's fiction is tomorrow's science and reality. So who are the fiction writers? Who are the people who are driving the global growth in different directions? Who are giving the breakthrough solutions to mankind? So at the end of the day, literature has a very serious role to play in our everyday lives, and it is affecting it without us realizing it, because they are very good in storytelling, they are very good in poetry and prose, and a lot of visionaries in the past, like Nostradamus and others, where they could not express very candidly their thoughts and views and research, they have been using different poetry, forms of poetry, quatrains and others, to convey the message, and the message has traveled the time. And we have seen कि ये बहुत कुछ decode हुआ फर्स्ट गल्फ वॉर में, सेकेंड गल्फ वॉर में,
when people realize, wow, somebody said something about it. तो वो तो एक research थी, but it had to travel, and again it becomes all contextual, because उससे जब लिखा तो अगर वो लिख देता straight तो क्या होता, he would have been killed because nobody would have trusted him. उन लोगों ने उसको evil spirit लेना था. So these guys in literature, they're very good in art of disguising and sending subtle messages, and taking it forward very, seamlessly. They link the past to the future. Moving forward, जो हमने देखा कि एक author, poor girl, nothing to feed herself, वो एक book लिख देती है and she becomes a billionaire, right? J.K. Rowling, you all know, and Harry Potter is the character she created. So ये जो literature के लोग हैं, ये बहुत कुछ through characterization, symbolism and storytelling के through आपको एक ऐसे वर्ल्ड में ले जाते हैं जिसकी शायद एक मार्केट में सेगमेंट क्रिएट हो रहा हो. People want to see themselves as stars. They want to follow stars. They want to follow celebrities. And every celebrity or every star or every person always have a villain. And it's a villain actually who makes you star if you really look at it. Who are the story writers for these stars and villains? Who are the content writers? Who are the developers? Who are promoters or literature? अभी मैं आपको ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ to create a context of our talks and discussions. उसके बाद I'll be requesting at least 3 volunteers जो मेरे साथ बातचीत करें in this emerging age जिसको हम कहते हैं age of science, age of technology, में किस तरह उनका रोल emerge होता है, और जितना interactive होगा उतना मैं ज़्यादा depth में जा सकूँगा. I have a lot to talk about the subject because I've used this subject very well. And I'll like to give you a small story. In South Africa, there's a place called KwaZulu-Natal, and there I was given about, in my previous life, bang on Indian Ocean, more than 100 square kilometers of the land, and I was asked, do something about it, kya karna hai? And Zulu tribe, very famous tribe, जिसने अंग्रेजों को अफ्रीका से मार के निकाल दिया था, और वहाँ पे उन्होंने एक दरख्त भी लगाया हुआ है जिसको वो बोलते हैं अल्टीमेटम ट्री, बिकॉज उस दरख्त के नीचे इनका जो जुलू किंग था, उस ट्राइब का जो बॉस था, उसने वहाँ पे खड़े होके अल्टीमेटम दिया था ब्रिटिशर्स को कि गेट आउट ऑफ दिस प्लेस अदरवाइज विल किक यू आउट, एंड दे किक देम आउट. अच्छा, तो व्हाट टू डू विद दैट प्लान? एंड आई हैव टू विजुअलाइज, कॉन्सेप्चुअलाइज, थिंक कि क्या किया जाए, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, who will be the investors, who will be the consumers, who will be the buyers. So I engaged few students from Cape Town University, very good university actually. ये KwaZulu Natal जो है ये it's a different province. तो वहाँ पे भी एक थे गवर्नमेंट के लोग थे, उनके साथ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एंगेज किए, कुछ हिस्टोरियंस एंगेज किए, एक फिल्म मेकर एंगेज किया जो साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा प्रमोट करता था कि टैंक होना चाहिए जिसे हम शार्क वार्क दिखा सके. एनीवे, एंड आस्क देम टू, मुझे कॉन्टेक्ट में जिसको बोलते हैं ना कंटेम्प्रेरी चीज़ किया है, तो वहाँ पे उनकी बड़ी प्राइड थी इन द ट्रेडिशन, इन द कल्चर. तो आई आस्क देम टू राइट अबाउट इट. मुझे बताओ, को किताबें भी लिखी हुई थी, दे गेव मी फ्यू थिंग्स टू रीड. और उसके बाद हमने एक प्रोजेक्ट कॉन्सेप्चुअलाइज किया बेस्ड ऑन स्टोरी टेलिंग कैपेबिलिटीज ऑफ दोज स्टूडेंट्स एंड सम प्रैक्टिशनर्स आल्सो. उसके बाद व्हाट वी डिड, देयर इज अ वेरी बिग architectural firm in America, WATG, Wattage. I engaged them, paid them $1 million to come over and work on the project. We gave them this Afrocentric story, and उसकी बेसिस पे they designed the project, और उस प्रोजेक्ट में उन्होंने तमाम एलिमेंट्स जो जुलू ट्राइब के थे उनको यूज़ किया. हत्ता के जो ब्रिज थे वो भी जो उन्होंने बनाया, उनकी खास एक ढाल होती है वॉर में, that was used to design the bridge. और वो तमाम सिंबल्स, तमाम चीज़ें जो उन स्टूडेंट्स ने अपने एसेज में, आर्टिकल्स में, अपनी सोच में, अपने सीनियर से बातचीत करके और कंसल्टेशन में, बट
और जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाइन दी, उसके ऊपर डिजाइनिंग हुई, डिजाइनिंग हो गई, प्रोजेक्ट बना, एवरीबडी लव दैट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारे फीचर्स थे जिनकी अलग अलग स्टोरी बनी, और उस स्टोरी के अराउंड उसको कॉन्फ़िगर किया गया, कोर वही रखा, ज़ुलू ट्राइब का जो कल्चर था, एंड देन डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट सिंबल्स को उठा के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्रिएट किए गए, एंड देन वी एंडेड अप मेकिंग अ ब्यूटीफुल मास्टर प्लान and economic zone with all the industries, housing, hospital. उसको हम बोलते थे from cradle to grave, all of your lifestyle needs are met. Then we face up with a challenge. Challenge हमें ये आया कि वहाँ पे बहुत सारे तो लोग बहुत गरीब थे and they were living off agriculture. वहाँ पे ज़मीनें थी, छोटी छोटी थी, लेकिन they used to grow and survive. तो it became a resistance group. What to do then? तो हमने फिर इन्हीं बच्चों से आर्टिकल्स लिखवाए अखबार में कि हाउ इज गोना बेनिफिट देयर लाइफ, उनको क्या एडवांटेजेस होंगे, और लोकल लैंग्वेज में, राइट। एंड फिर जो भी उनके लोग थे जो कि इन्फ्लुएंसर्स का लफ्ज ज़बान में यूज नहीं होता था, बट पीपल हु कुड रियली इन्फ्लुएंस देयर डिसीजंस, वी एंगेज देम, और उन्होंने फिर उनके साथ बातचीत भी की, लिखना भी शुरू किया। उनके जो वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर्स थे वहाँ जाके भी उन्होंने बात की, और उसके लिए दे हैड टू कनेक्ट विद देम, एम्पैथाइज, तो कम्युनिकेशन स्किल वाज अ की, and storytelling, you know, how such things have helped this region in the past, आगे क्या होगा। तो ये जो लिटरेचर के लोग होते हैं, ये टेक्नीशियंस भी होते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन किस टीम का हिस्सा है और वो उस टीम का आउटलुक क्या है इनके ऊपर। तो उसकी बेसिस पे हमने सॉफ्ट इमेज बिल्ड किया, सॉफ्ट इमेज बिल्ड करके उनको कन्विंस किया, उनको उनकी डेवलपमेंट दिखाई, कि चीज़ें दिखाई, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं का एक थोड़ा सा आपको इंट्रो दे के कॉन्टेक्स्ट में ले आऊँ, एंड मैं आपका वो भी देख रहा था कि क्या क्या कोर्सेज पढ़ रहे हो, और उससे मुझे बड़ी रेलेवेंस नजर आई कनेक्टिंग यू विद IR 4.0। IR 4.1 था जब इंजन बन गया स्टीम इंजन, 2 जब बिजली का इस्तेमाल शुरू हो गया, मैस प्रोडक्शन हो गई, 3rd था जिसमें आपने देखा इंटरनेट आ गया, कम्युनिकेशन आ गई, 4th पे आपने देखा इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गई, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, और PLCs आ गए, आप यहाँ बैठ के जो मर्जी करें। एंड तो अब हम 5.0 में जा रहे हैं, जिसमें फिर विल बी हैविंग लॉट न्यू टूल्स टू प्ले विद। अब इन तमाम टूल्स की जो डेवलपमेंट है, इफ यू गो बैक, आप देखोगे कि किसी ना कुछ लिखा था, फिक्शन था, विच गॉट ट्रांसलेटेड इनटू समथिंग more pragmatic, and लोगों को ideas आ गए, because seeding of ideas always comes from somebody who uses intellect, who critiques things, who thinks about the solutions to the problems humanity is facing. आज पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, या सोशल है, या इंटरनेशनल पेंडेमिक है, उसके फॉरेन अगेंस्ट कैसे आपने लेके चलना है, तो ये तो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी का सारा हिस्सा है, एंड you guys are best in that, and so you can definitely look into this context to see कि आप कैसे ड्राइव कर सकते हो। दुबई आपके सामने बहुत करीब है, आपसे बहुत लोग गए भी होंगे। It's built around a story, around poetry of Sheikh Mohammed. And one of the जो पाम डेरा है, पाम जुमेरा है, फिर पाम जबल अली है, पाम जबल अली पे उसने बकायदा अपनी, इज अ पोइट आल्सो शेख मोहम्मद, उसने पोइट्री में लिखवाया था कि आई डोंट वांट टू रिपीट दोज वर्ड्स, थोड़ा सा उस पे ब्लास्फेमी का एंगल आ गया था। तो देन ही सेड, यू सी, मैंने एक ट्रेन शुरू कर दी है, जो भी बोर्ड कर लेगा मेरे साथ डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं पहुंच सकेगा। एंड देन इट वाज अ ह्यूज मीडिया कैंपेन। PR एजेंसी स्पेशलाइज्ड होती है, दे आर नॉट एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, राइट। तो उसने अखबारों में आर्टिकल्स आ रहे हैं, चीजें आ रही हैं, ग्लोबल उसने एक हवा क्रिएट की थ्रू पब्लिक रिलेशनिंग, जिसमें कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स थे, और हर रीजन के थे, हर जगह के थे, दे आर वेरी बिग ब्रांड्स, वेबर शैंक है, इस और बहुत सारे हैं जो सिर्फ PR करते हैं, नो एडवर्टाइजिंग। और PR में क्या है कि आप, अगर मैं एक आर्टिकल देता हूँ, लेट्स से 2 कॉलम और let's say 6 inches or whatever, say 12 centimeters, और उसके सामने एक इश्तिहार लगा वो मेरे कंपेटिटर का, तो as a reader I'm going to trust that article more than the ishtihar, because I know it's a paid thing, but this article is an opinion, knowledgeable, cognizant decision, and a judgment of a person who is known in literary circles
and he's no bullshitter. So yeah, this is a brief introduction. Now I would like 2-3 volunteers from your side before मैं आपको और कुछ बातें करूं कि जो मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं या आप क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो भी आप शुरू हो जाए मेरे साथ. All right, sir. So there is a question from Fabebur Rahman that I forwarded it to you as well. That he think language plays an important role in the construction of thoughts, or to manipulate the ideology as well. Why people allow the words to change their cognitive behavior? Okay, देखो it's जो लिटरेचर है ना इसके अंदर साइकोलॉजी का बहुत ज्यादा एलिमेंट है और आप देखोगे बहुत सारे लफ्ज लिटरेचर में या लिंग्विस्टिक्स में यूज नहीं होते तो कि एट्रिशन हो जाती है, वो लैंग्वेज आउट होना शुरू हो जाते हैं और फिर इंटेलिजेंशिया है जो लफ्ज को वापस लेके आती है किसी न किसी शेप और फॉर्म में. अब लैंग्वेज प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट्स. अभी हम फर्स्ट पोर्शन पे आते हैं. व्हाट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट्स? उसके लिए लैंग्वेज होना नहीं है काफी. यू नीड टू हैव सम थॉट, राइट? कोई सोच होगी आपका. मैं आपको मिसाल देता हूँ. आई लर्न इट समवेयर इन वेस्ट. एक मुल्क में था, वहां पे बात हो रही थी कम्युनिकेशंस के ऊपर एंड तो वहां पे एक स्पीकर आया, वेरी रिनाउंड ऑथर ऑफ बुक्स. उसने कहा कि बात ये है, उसको चैलेंज कर दिया किसी ने. उसने कहा आप कम्युनिकेट उसी वक्त करोगे जब यहाँ पे कुछ होगा. दिस इज योर डैम. इसमें अगर पानी नहीं है ना तो नथिंग विल फ्लो आउट ऑफ योर टंग, और अगर इसमें पानी है और स्पिलवे नहीं है, स्टिल नथिंग विल फ्लो आउट ऑफ योर टंग, बल्कि वो आपके लिए बड़ा हैवी वेट हो जाएगा और आप संभाल नहीं पाओगे. योर पर्सनैलिटी विल गेट अफेक्टेड. ठीक है, तो टू हैव अ रियल गुड बैलेंस, a nice spillway जहां से वो निकल के आए. अच्छा, spillway क्या है, बात ये समझ ली है. अगर दोनों चीजों का लिंक पॉइंट spillway है, what is spillway? Spillway is the language, is the art of communication, is both science and art. How you communicate? आप जबान से करते हो, अल्फाज से करते हो, ड्रामा के थ्रू करते हो, थिएटर के थ्रू करते हो. इंग्लैंड में थिएटर का रिवाइवल कैसे हुआ? बिकॉज अखबार में तो सारी येलो जर्नलिज्म आती थी, झूठ आता था, सच मिलता नहीं था. व्हाट हैपेंड? स्टेज ने रियल लाइफ सिनेरियो को रीएनैक्ट करके दिखाना शुरू किया. लोग वापस जाना शुरू हो गए और वो देख रहे थे कि व्हाट इज हैपनिंग इन द कल्चर, इन द सोसाइटी, व्हाट्स द ट्रुथ. अखबार को लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे थे. ठीक है, तो यू हैव टू कंस्ट्रक्ट योर थॉट्स, योर थिंग्स, स्ट्रक्चर देम, और उसके बाद आप आगे कम्युनिकेट करते हो इन एनी शेप एंड फॉर्म. अच्छा, तो वो सारा क्वेश्चन इधर कहाँ चला गया? मैं उसी के क्वेश्चन के पार्ट से ब्रेक करके बात कर रहा हूँ. अच्छा, अब आपने दूसरा लफ्ज किया, और टू मैनिपुलेट द आइडियोलॉजी. ठीक है, अब यहाँ पे ना देखो, आइडियोलॉजी जो है ना, ये एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल वर्ड है. हम इसको मैनिपुलेशन पे रख लेते हैं अभी, क्योंकि वो आइडियोलॉजी के ऊपर मैं अगर जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो सकती है. तो अच्छा, बेसिकली व्हाट इज मैनिपुलेशन? मैनिपुलेशन को हम सब लोग ये समझते हैं कि दिस इज एक्सप्लॉइटेशन, और मैं आपको यूज कर रहा हूँ, आपको इस्तेमाल कर रहा हूँ, एंड दैट्स व्हाई आई एम मैनिपुलेटिंग यू एंड योर थॉट्स एंड एवरीथिंग. मैनिपुलेशन का पॉजिटिव एंगल भी है कि एक बहुत नेगेटिव बंदा मेरे पास आता है और डिप्रेस्ड है, बीमार है. साइकोलॉजिस्ट क्या करता है? ही very candidly and carefully manipulates your negativity and takes it into positivity. This is where manipulation helps you in your life and society goes on. तो जब हम कहते हैं ना manipulate the ideology as well, तो ये एक बड़ा sensitive term है. and अब मैं आइडियोलॉजी को बिल्कुल सेक्युलर ले लेता हूँ कि इट्स अ स्टडी ऑफ आइडियाज. आइडियोलॉजी इज आइडिया एंड लॉजी इज तो स्टडी ऑफ आइडियाज. तो जो आइडियाज की स्टडी है उसमें तो मैनिपुलेशन नहीं होगी, तो फिर वो कैसे आगे स्टडी चलेगी? मैनिपुलेशन कैसे होगी? मैनिपुलेशन कैसे होगी आइडियाज की स्टडी में कि मैं एक बंदा हूँ, मुझे एक आइडिया दिया गया और मैं देख रहा हूँ कि मेरे बिजनेस इंटरेस्ट को सूट नहीं करता, so I will come out with some counter thought, counter argument, and I will manipulate it, right, to defend my. तो defense mechanism भी है ये, because linguistics का psychology से बहुत गहरा ताल्लुक है. और मेरियम वेबस्टर जो जिन वेल renowned नेम, उनका तो कहना ये है कि यार वोकैबुलरी नहीं होगी ना तो तुम कम्युनिकेट नहीं कर सकते. तो वोकैबुलरी का होना बहुत जरूरी है. एंड ही कंपेयर इट विद कुकिंग ऑफ अ डिश कि अच्छे इंग्रेडिएंट्स होंगे तो खाना अच्छा पकेगा, इसी तरह अच्छे लफ्ज होंगे तो यू विल बी एबल टू create a very
compelling story and you'll be able to sell anything, because जो literature के बच्चे हैं, they have to create things जिससे आप चीजें sell कर सको. तो मैनिपुलेशन ऑफ आइडियोलॉजी इज स्टडी ऑफ आइडियाज. उसकी आइडियाज तो आइडियाज है, ह्यूमन क्रिएटेड है, ह्यूमन माइंड के साथ हैं, और हर शख्स का आइडिया अलग होता है. इसको आइडिया को आप थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं. व्हाट इज परसेप्शन? आइडिया भी बनता है परसेप्शन से. परसेप्शन इज इक्वल्स टू स्टिमुलस प्लस मीनिंग. ठीक है, स्टिमुलस क्या है? मैं बल्ब को देख रहा हूँ, लाइट आ रही है मेरी आंखों में तो एक स्टिमुलस आ रहा है, या किसी ने कोई बात की मेरे ब्रेन में एक स्टिमुलस आ रहा है. अब उसको मैं मीनिंग दे रहा हूँ. उसको मीनिंग अगर मैं आया हुआ हूँ किसी बहुत ही बैकवर्ड एरिया से, आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई थिंग्स, तो मैं कोई और मीनिंग दूंगा. अर्बन नाइट हूँ कुछ और दूंगा, साइंटिस्ट हूँ कोई और दूंगा. तो जो मीनिंग है ना, उससे बहुत डिपेंड करता है मेरी एजुकेशन, मेरी अवेयरनेस, मेरी नॉलेज. उसके हिसाब से मैं उस स्टिमुलस का मतलब निकालूंगा. और उस अब एक बंदे के सर पे सेब गिर गया था, वो स्टिमुलस था. ठीक है, आप सब जानते हैं. और उसने कहा ये कैसे गिर गया मेरे ऊपर? तो उसने, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, वो डीप थिंकर था. उसने कहा ये क्यों गिर गया, ऊपर क्यों नहीं गया? और उसके बाद उसने उस आइडिया को लेके आगे उसको स्टडी करता गया. ही केम आउट द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी. एक बंदा था, वो पानी में टब में नहा रहा था और वो ऊपर बॉयंसी हो गई, ऊंचा होना शुरू हो गया. व्हाई इट इज हैपनिंग? तो एक आम आदमी था, उसके सर पे सेब गिरता रहता था. उससे कहा यार उठाओ और खाओ और चलो. एक आदमी नहा रहा होता था और नहा के चला जाता था. एक ने कहा यार व्हाई आई एम फ्लोटिंग ऑन वाटर, तो बॉयंसी क्यों क्रिएट हो रही है? तो उसने और प्रिंसिपल्स बना दिए. तो ये जो आपकी जो स्टिमुलस है वो तो मेरा और आपका सेम होगा, लेकिन उसकी जो परसेप्शन क्रिएट होगी वो थ्रू इंटरप्रिटेशन होगी. इंटरप्रिटेशन मेरी आपकी लाइफस्टाइल, नॉलेज, लर्निंग के मुताबिक होगी और उसके अलावा नहीं होगी. राइट? तो उससे फिर एक आप का सिनेरियो क्रिएट होता है. तो व्हाई पीपल अलाउ द वर्ड्स टू चेंज देयर कॉग्निटिव बिहेवियर? देखो, दिस इज कॉल्ड लैंग्वेज इंजीनियरिंग. ठीक है, रशिया में मैं था, वहां पे उन्होंने ह्यूमन बींग्स बनाने की कोशिश की कि वी शुड हैव वेरी गुड ह्यूमन बींग्स. तो उन्होंने क्या किया, चोरी का लफ्ज निकाल दिया अपनी डिक्शनरी से कि ये लफ्ज नहीं होगा ना तो फिर ये लोगों को पता ही नहीं होगा कि चोरी क्या होती है, एंड दे विल बिकम गुड ह्यूमन बींग. एक थॉट चली थी, चलती है थॉट्स, टाइम आता है, फैड होते हैं, चली जाती है. तो मैं एक दोस्त के घर गया हुआ था मिलने के लिए, तो वो एक लड़का, दो लड़कियां आई और कुछ चिकन देके चली गई उसको. तो मैं बड़ा हैरान कि क्या हुआ, तुझे देखे वो चली गई है मतलब. और वो उसने कहा यार बेसिकली दे आर द नर्सेज वर्किंग इन हॉस्पिटल, वहां पे चिकन पड़ा था, वो उठा के ले आती है, मुझे बेच देती है, मैं बाय कर लेता हूँ. मैं कहा वेरी गुड. अच्छा, तो मैं कहा ये इसको थेफ्ट नहीं कहते? कहता है नो. यू नो क्या? उससे फिर मुझे सही बात समझाई. वो जो बहुत पढ़ा लिखा आदमी था. तो आप जब किसी भी लफ्ज के साथ खेलते हो ना, तो देखो हर शख्स इंसान है ना, उसमें अब आप सिगमंड फ्रॉइड की तरफ चले जाएं इसको कॉन्टेक्स्ट देने के लिए. ठीक है, उसने कहा कि इंसान में इड है, ईगो है, सुपर ईगो है. ठीक है, फिर मेरा अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म है. उसके बाद मुझे अपनी डिजायर्स हैं, मेरी नीड्स हैं, मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स है. ये जो लफ्ज आगे पीछे होते हैं ना, वो उसी में होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप कोर्ट में जाके देखोगे तो उसी लफ्ज को एक वकील कुछ और तर्जुमा कर रहा होगा, दूसरा कुछ और कर रहा होगा. व्हाई? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू ट्राई टू यूज द लैंग्वेज एंड योर नॉलेज टू योर ओन बेनिफिट और टू द बेनिफिट ऑफ योर क्लाइंट्स. ठीक है, जो 100% प्योर सोच है, प्योर सोल है, जो ये कहती है कि गुड मीन्स गुड और अच्छा ही है, तो और वो अच्छा ही देखेगा हर चीज को. बहुत सारे फिर लोग हैं कहते हैं गुड इज नॉट एब्सोल्यूट word. It is a relative word. How good is good? How bad is bad? मेरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो था. एक जगह हम इंटरव्यूज कर रहे थे, इट वाज इन हॉलैंड. तो वहां पे मेरे साथ एक बंदा ब्रिटिशर बैठा हुआ था. तो एक जनरल लोगों की टेंडेंसी होती है सर, टू बी ऑनेस्ट आई वांट टू टेल यू दिस. तो वो मेरे साथ जो बैठा हुआ था वो सुनता रहा उसकी बात. उसके बाद वी लॉस्ट इंटरेस्ट इन द गाय बिकॉज टू बी ऑनेस्ट बहुत कर रहा था. तो उस ब्रिटिशर ने उसको कहा कि सो यू आर टेलिंग मी टू बी ऑनेस्ट, यू मीन दिस एंड दिस.
Are you just honest or are you perfectly honest in telling me this thing? बड़ा सा चेहरा सीधा कर लिया, वो बंदा हिल गया, तो ऑनेस्टी की भी डायमेंशंस हैं, हर चीज की डायमेंशंस हैं, और वही डेप्थ और विड्थ हर लफ्ज के अंदर है. हाउ यू स्ट्रक्चर इट और किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हो, that will define you, it will define your career, it will define your success in your life. But trust me, communication is the key. And literature वाले बड़े लकी हैं जितने भी लोग हैं, provided एक टूल आपको, it's not the gun, it's man behind the gun, how you use that tool. मार्केटिंग हो नहीं सकती, सामान बिक नहीं सकता, डिजिटल मार्केटिंग हो नहीं सकती, ऑनलाइन चीजें हो नहीं सकती जब तक कंटेंट डेवलपर्स ना हो, राइटर्स ना हो, ऑथर्स ना हो. टेक्निकल बुकलेट्स लिखनी है, टेक्निकल लिटरेचर चाहिए, ब्लॉगिंग चाहिए. लोग देखते हैं अब जाके उस पे कि भाई ओके दिस इज द प्रोडक्ट, इस पे लोग क्या कह रहे हैं, ये रेस्टोरेंट खुला है, इस पे लोगों का क्या ओपिनियन है, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, शुड वी गो, शुडंट वी गो. ये तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि इट्स ऑल गेम ऑफ कम्युनिकेशन. इंसान का इंटरेक्शन भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के थ्रू है. You have verbal communication, you have non-verbal, you have object language, you have other things. Sara, कोई question और आ रहा हो तो you can please interrupt me. Shabad Saab has raised the hand. He wants to make some comment, I guess. जी please. Gee, thank you so much, Khalid Naqi Sahab. I'm really enjoying your discussion with the students, and I wish if we could have this kind of a session in each semester for our students. Just for your information, we have audience both from literature and linguistics. All right. There are students who are from BS English Language and Linguistics. Moreover, relating to literature, as you have given various dimensions of literature, I personally think there are many aspects in literature that probably are open to investigate and probably open to pursued career. Like as you have rightly said, theater. Like our students, they just read literature and they never thought about theatrical performance and in real life. And of course they know writing, content writing, but film, script, dubbing, and subtitling, performance, and acting. So these are all various fields open for students to pursue their career and to think about it. And over to you. I'm waiting for your discussion, not my kind of. No, great, Dr. Saab. Yes, We will love to be your extension. आप हमें बताएं जब आप बुलाएंगे, we are available. Thank you And so we have a much. lot more to share. And हम लोगों को एक context में ला के उनके subject के मुताबिक we will drive them how to start designing their career, because आप जितना जल्दी अपने career की designing शुरू कर दोगे ना, उतने कामयाब हो जाओगे. By the time you graduate, you'll be a marketable graduate. Yeah. No, I really appreciate your discussion on philosophy of language. Believe you me, I was enjoying. And please go on. Thank you very much. अच्छा, लकीली मैं डॉक्टर साहब देख रहा था कि कंप्यूटर एप्लीकेशन भी आप पढ़ा रहे हो, क्रिटिकल थिंकिंग भी है, और इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स भी है आपके उसमें, एंड सोशल लिंग्विस्टिक्स है, साइको लिंग्विस्टिक्स है, तो कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग भी है, एंड देन सिमेंटिक्स वो तो चले हो गया, क्रिएटिव राइटिंग, ग्रीक ट्रेजेडी ना, ग्रीक ट्रेजेडी से कितनी मूवीज बनी है, पीपल हैव मेड बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्रॉम दैट, और 21st सेंचुरी नॉवल, तो आई थिंक बहुत कुछ, यू हैव अ वेरी रिच करिकुलम, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड एक्चुअली. एंड अब सिर्फ ये है कि हाउ टू फिल द डैम एंड हाउ टू गिव देम अ स्पिलवे, एंड और उस पानी को हमने किधर लेके जाना है, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो आपको पता है ना कि जस्ट टू कि जब डैम भर जाता है, उसमें पानी होता है, तो इंडेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से कि जी हमारी यहाँ पे फसलें लग रही हैं, हमें पानी चाहिए. तो जब उनका इंडेंट आता है, आप पानी रिलीज करते हो, तो ये टरबाइन भी लगा होता है जो बिजली भी बना देता है. तो if you have watered your dam, you can create electricity in your talks and in your output, and you can really make a big impact in society. तो सारी बात कैंडिडली स्पीकिंग कम्युनिकेशन की है, जो कि लिंग्विस्टिक्स लिटरेचर के बच्चे हैं, हिस्ट्री इनके पास है, इनके पास सोशल कॉन्टेक्स्ट है, इनके पास रोमन हिस्ट्री क्या थी, ग्रीक क्या थी, माइथोलॉजीज की स्टोरी है, सारा कुछ है. तो उसको अगर इफ दे पुट टुगेदर और एक स्ट्रक्चर कर लें और उसके बाद ड्राइव करें अपनी थॉट्स को, तो मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देना चाहूँगा.
एंड बच्चों को पता नहीं है शायद कि कितने जबरदस्त करियर में वो एंटर हो गए हुए हैं. All they have to do is to just probe deeper into their minds कि हम how to define a graduate. जो सेशन मैंने सोचा कि बहुत ज्यादा मैं उस तरह का ना करूं जिस तरह का सुनते रहते हैं, लेकिन that will come in the second part of my talks. और अभी बज के 11:30. I think I'll need only 20 minutes and उसके बाद they can ask anything. एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो कम्युनिकेशन के, चाहे वो देखिए लिंग्विस्टिक्स में भी यू हैव टू प्ले विद द वर्ड्स एंड यू हैव टू कम आउट विद समथिंग, और हिस्ट्री में, और फिर बाकी में आपके पास नॉलेज है, फिलॉसफीज का पता है, सोचों का पता है, यू कैन विजुअलाइज फ्यूचर वेरी वेल, कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. तो एक बहुत ही हाई इम्पैक्ट चीज क्रिएट हुई जिसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव ऑर्गेनाइजेशनल फिक्शन. I'm referring to this point because आगे 4.0 टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, और उसके लिए कैसे तैयारी करनी है, ये कैसे रोल प्ले कर सकते हैं, किस तरह ये उसमें इन हो सकते हैं. तो I'll give 2, 3, 4 things. उसके बाद I will open it for the questions. एक अमेरिका में रिटेलर है लोज के नाम से, LOWES, और उसने क्या किया, उसने देखा यार मेरी कंपनी की प्रोडक्टिविटी ड्रॉप हो रही है, लोग भी डिमोरलाइज हैं, देयर इज नो लाइफ, और आई रियली नीड टू रीइनवाइग्रेट द होल सिस्टम, और मुझे उसमें चीजें लेके आनी है कि मेरी प्रोडक्टिविटी ऊपर जाए. तो ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे तमाम अच्छी चीजों का फायदा ये होता है, प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर चली जाती है. व्हाट ही डिड, उसने क्या किया कि उसने साइंस फिक्शन राइटर्स को इनवाइट किया कि यू कम एंड शेक अप थिंकिंग अमंग द कंजर्वेटिव टॉप टीम. जो टॉप टीम होती है ना, वही बॉटलनेक होती है, वो चलने नहीं देती. तो तो उसने कहा कि जो मेरी टॉप टीम है ना, इसको आपने, यू हैव टू गिव देम अ रियल रेक्टर स्केल पे 10.0 का झटका दो इनको और इनको उठाओ. दे आर ऑल वेरी गुड, दे नो देयर जॉब वेल, लेकिन क्या है कि द कंटेम्पररी का आप लोग बहुत लफ्ज यूज करते हो अपने डोमेन में. So things have changed and a new normal is emerging, new life is emerging. हमें नहीं पता क्या कर रहा है उसमें, और पुराने systems thought तो नहीं चलेंगी. तो what he did कि इसने ये साइंस फिक्शन राइटर्स को बुलाया, और उन्होंने फिर आके ना, एज अ साइंस फिक्शन राइटर दे वर बाउंड्री लेस. तो कम्युनिकेशन में अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है, आपकी इमेजिनेशन अच्छी है, आपके पास वर्ड्स हैं टू डिस्क्राइब, you are boundaryless. You can get into any domain and create an impact. You can create a havoc also if you like. अच्छा, उन्होंने क्या किया, पूरा उसकी डायनामिक्स चेंज कर दिए, स्टोर को उसने स्टारशिप बना दिया, उसमें उसने 3D प्रिंटिंग डाल दी, उसने रोबोटिक्स डाल दिया, उसमें जो भी आप कोई साइंस फिक्शन की मूवी देख सकते हो, वो स्टोर पूरा चेंज हो गया. एंड मैनेजमेंट भी हिल गई, उसमें लोगों को समझ में आया कि डाटा कैसे ड्राइव हो रहा है. फिर जो डाटा हमारे पास इकट्ठा हो रहा है, बिकॉज नाउ वी हैव फुली ऑटोमेटेड, एक बंदा एंटर हो रहा है, कितने बजे कितने लोग एंटर हो रहे हैं, अच्छा मेल कितने, फीमेल कितने, बच्चे कितने हैं, उसके बाद व्हाट दे आर शॉपिंग फ्रॉम 9 to 10, व्हाट दे आर शॉपिंग फ्रॉम 10 to 11, एंड कपड़े किस वक्त बिक रहे हैं, खाना, दे हैव ऑल द डाटा. बिग डाटा बोलते हैं, राइट? Now that big data has to be translated into communication for the clients. कि मुझे अब पता है कि यार 9 और 10 के बीच में, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल सिर्फ ले रहा हूँ, औरतें ज्यादा आती हैं एंड दे बाय ग्रोसरी फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो मैंने 9 से 10 के बीच में अपनी मैसेजिंग ही वही करनी है. स्पेशल डिस्काउंट्स ये है, आज टमाटर जो है वो बहुत सस्ता है फॉर एग्जांपल, बिकॉज टोमेटो अट्रैक्ट्स पीपल, वी ऑल नो इट. मैं आज कह दूं कि 10 रुपए किलो टमाटर है, एवरीबॉडी विल गो देयर. तो टमाटर तो आप खरीदोगे, उसके साथ 10 चीज और खरीद के लाओगे. बट somebody has to write these stories, build them up, and connect the organizations with the clients. और यही वो कमर्शलाइजेशन है जो कि आपकी डिग्री बहुत अच्छी तरह से कर रही है, राइट? और दुनिया में ये कम्युनिकेशन के लोग हैं. अमेरिका में जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें मैक्सिमम प्रोफेसर्स कम्युनिकेशन के प्रोफेसर्स हैं, बिकॉज व्हाट सेल्स is communication, by communication, through communication. तो है ना, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, तो ये भी कम्युनिकेशन ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. तो if you have this mantra in your mind, you have unlimited opportunities in your life and you can achieve whatever you want. 2-3 मैं यहाँ पे टिप्स दे दूं
I hope I'm not boring, और अगर कोई किसी ने interrupt करना हो, please feel free to talk to me. Let me see if there are any questions. अच्छा एक है कि सर how we promote writing, how we convince people to read our stories, right? देखो आप एक न्यू राइटर अगर हो तो आपने बेबी स्टेप्स लेने हैं. यू स्टार्ट ब्लॉगिंग, यू स्टार्ट राइटिंग शॉर्ट. अभी तो मुफ्त में है, डिजिटल मीडिया ने तो आपको लॉन्च कर पैड दे दिया है फ्री ऑफ चार्ज. यू स्टार्ट पुटिंग इन शॉर्ट स्टोरीज. लेकिन स्टोरीज में अगर कोई ऐसी चीज है, आप किसको टारगेट कर रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो, उसको आप अपने डिजिटल मीडिया पे डालना शुरू कर दो. एंड देन स्टार्ट कनेक्टिंग विद द पीपल अराउंड यू. एंड हाउ टू एम्पलीफाई, वही मैं थोड़ी दो तीन बातें आपको बता देता हूँ. एंड कुछ दोस्तों से क्या कि भी लाइक्स करवा लो उसके ऊपर, एंड कोई कमेंट्स करवा लो, कुछ ब्लॉग्स करवा लो, और उसके बाद वो एक ट्रेंड चल पड़ता है. एंड यू नो एवरीथिंग टेक्स टाइम. 2 3 4 महीने में यू विल एंड अप रीचिंग टू अ प्लेस. ऑलराइट, ओके. तो मेरे पास क्वेश्चंस कुछ आ रहे हैं जो बाकी टीम के पास नहीं आ रहे, डायरेक्ट आ रहे हैं, तो इसको आप ओपन कर दें. एनीवे ओके, मैं कर लेता. तो अभी तो बहुत आसान हो गया है. एंड उससे क्या होगा कि आपका एक सिग्नेचर बनता जाएगा कि यार दिस पर्सन एक्स, यू नो, ही राइट्स अबाउट सच एंड सच थिंग. तो आपका एक सेगमेंट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, वो आपकी मार्केट होगी. अब आपने डिसाइड करना है कि यू वांट टू ऑपरेट विद इन दोज बाउंड्रीज, और यू वांट टू बी लॉट मोर क्रिएटिव, एंड यू वांट टू वेंचर इन अदर डोमेन्स आल्सो. अभी फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस वक्त स्टडी करो कि 5G आ रहा है, ठीक है, और उस 5G से क्या क्या हो सकता है. पुट योर इमेजिनेशन टू यूज एंड राइट व्हाटएवर यू वांट टू राइट. डोंट थिंक कि आपने कोई स्टूपिड चीज लिखी है, अच्छी है बुरी है, जस्ट राइट. यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि आज से 5 6 साल बाद सब चीजें हो रही होंगी. ठीक है, तो ह्यूमन कल्चर का पता है, ह्यूमन बॉडी का पता है, उसकी जुबान का पता है, आपको आपको लैंग्वेज की लिमिटेशंस का पता है. बहुत सारे नए वर्ड्स आप कॉइन कर रहे होंगे. जैसे जब डिजिटल गेम सब शुरू हो गई तो एक डिजिराटी का वर्ड आ गया जिसमें डिजिटली सेवी बिजनेस लीडर्स. इसी तरह जब वो मेरी डयाना का हुआ था, पापाराजी बिकेम द टॉक ऑफ द टाउन. इस तरह बहुत सारे वर्ड आते रहते हैं, जाते रहते हैं. फिर लैंग्वेज में एट्रिशन भी हो रही है. डॉक्टर शबान मेरे से बेहतर बता सकते हैं वो. आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दैट, बट आई नो कि बहुत सारे लफ्ज की एट्रिशन हो चुकी है. और कुछ लोग बड़ा क्रिएटिवली दे आर ब्रिंगिंग देम बैक, एम्प्लॉइंग देम इन देयर टॉक्स, और बायलिंगुअल करके उनको यूज कर रहे हैं. तो अच्छा, मैं अभी क्वेश्चंस देख लेता हूँ क्विकली. टेक्नोलॉजी इज मोर डोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन प्रोजेक्शन ऑफ विजन्स rather than words nowadays. अच्छा देखो, स्क्रीन प्रोजेक्शन, एक मूवी आप देखोगे 4.5 घंटे की है बनी है. वो बनी CGI के ऊपर है, राइट? लेकिन इवन CGI नीड्स अ स्टोरी लाइन यार. बड़ी बोरिंग मूवी है, मैंने देखी है पूरी. एंड उसमें इन्होंने कभी चले गए हुए हैं 3000 BC, कभी चले गए फ्यूचर में, आगे पीछे कनेक्ट कर रहे हैं. बट देयर इज अ स्टोरी, यू नो, दे आर कनेक्टिंग डॉट्स. और उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो उसमें, क्योंकि आप कंप्यूटर ग्राफिक्स इतने अच्छे आसान हो गए हुए हैं कि पूरी मूवी आप एनिमेशन पे, मूवी का अगर आप देखोगे स्टॉक इमेज है उसमें, उसमें आपका एनिमेशन है, उसमें आपकी थोड़ा सा रियल शूट भी है. And but again, to link everything, you need a story, a compelling story which connects with the market segment you're trying to connect. Otherwise, वो नहीं होगा. People are more interested in visualized material, no doubt about it. Visualization में क्या हो रहा है, आपकी 5 senses use हो रही हैं, and you're talking about it. आप देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, लोगों से बात भी कर रहे हो. It's less stressing. पढ़ने में क्या है कि you still have to go through it. इसी तरह बुक्स आ गई हैं कि वो ऑडिबल है, ऑडियो बुक्स से आप सुन लो, बट इट्स आल्सो वेरी पेनफुल. मैं वर्टिकल रीडिंग करता हूँ. एंड उसमें जहाँ पे जरूरी कोई चीज होती है, आई स्पेंड टाइम, अदरवाइज आई मूव फॉरवर्ड. लेकिन क्या है कि बी कंसाइज, जो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन उनको फॉलो कर ले अपनी राइटिंग में. बिकॉज अभी कैंडिडली स्पीकिंग, आप बहुत सारे रिसर्च के थीसिस पढ़ोगे ना, पहले एब्स्ट्रैक्ट है, उसका फिर रेपिटेशन है, फिर रेपिटेशन है, 6 दफा तो रेपिटेशन हो रही होती है. तो आई थिंक दैट विल आल्सो बी डिसरप्टेड बिकॉज इज द एज ऑफ डिसरप्शन. और ये इस डिसरप्शन को क्रिएट करने में ना आप लोगों का बड़ा हाथ है, अगर आप थोड़ी सी स्थिति में जाए. Sir, there is another question from Alishba. हम्म. She's saying, sir, as we are linguistic students and we can use language in any field, so can we apply in other fields too? Absolutely, yes. Actually, मैं अब आता हूँ, चले मैं उस चीज पे आ जाता हूँ. Let me clarify a few things.
देखो, एज अ ग्रेजुएट ऑफ लिंग्विस्टिक्स हो या लिटरेचर हो, अंग्रेजी दोनों में पढ़ी है आपने, डिफरेंट कल्चर्स पढ़े हुए हैं, लफ्ज भी आते हैं, तर्जुमा भी आता है, और स्ट्रक्चर भी करना आता है, कंपोज भी करना आता है, थॉट्स ड्राइव भी करनी आती हैं, और आगे क्लाइंट को जहन में आप रख के करोगे तो आप सब कुछ बहुत अच्छा कंपोज कर लोगे। अगर एक कंपोजर बीथोवन था तो उसमें क्या चीज थी जो खालिद नगी में नहीं है? व्हाई आई एम नॉट बीथोवन, राइट? तो ये आपने देखना है कि बीथोवन क्या करता था, मोज़ार्ट क्या करता था। सिम्फनी इज आल्सो कम्युनिकेशन, और वो कैसे कर रहा है कि दुनिया पागल हो गई है, यू नो, मिलियन एंड बिलियंस। शेक्सपियर की बुक्स हैं, मतलब बेचारे को मरे हुए अरसा हो गया और $1 बिलियन से ऊपर की उसकी सेल है, बाकी भी आप देख लो। अच्छा, अब मैं आता हूँ बेसिक कोर के ऊपर। कोर क्या है आपका? आपका कोर ये है कि यू हैव द इमेजिनेशन, you have the right words and you have the ability to communicate. आप अपने आप को डिफाइन करना चाहते हो तो स्टूडेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन रीडिफाइन कर लो, इसमें आपकी ना डेफिनेशन खुल जाएगी, और यू हैव द एबिलिटी टू कम्युनिकेट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। अब मैं आपको कहता हूँ कि जी मैं कार बना रहा हूँ, इसका मुझे टेक्निकल मैनुअल बनाना है, तो उसके लिए मुझे कंटेंट राइटर चाहिए। अब कंटेंट राइटर जो है वो मोटर मैकेनिक तो नहीं है, ना उसने कार डिजाइन किया ना कुछ किया है, उसको आई एम सिटिंग एज अ टेक्निकल हेड और मैं उसको बता रहा हूँ कि इसमें ये फीचर्स हैं, ये चीजें हैं, ये इस तरह है, अब इसके ऊपर यू नो एक टेक्निकल मुझे वो दे दो और एक इसके साथ दूसरी टीम लगा लो जो उसके ऊपर मार्केटिंग और बाकी चीजें जो है ना इसका कोलैटरल बनाए, तो आपको डाटा पॉइंट्स मिल जाएंगे। आप टेक्निकल लिटरेचर तो बहुत ड्राई सा होता है, आप वैसे वैसे अंग्रेजी ठीक लिख दोगे ताकि पढ़ने वाले को भी समझ जाए और सब कुछ हो गया। जो उसका मार्केटिंग कोलैटरल है, मार्केटिंग कोलैटरल में यू विल बी पुटिंग इन लॉट ऑफ पफरी, लॉट ऑफ विजुअलाइजेशन, आर्टिफिशियल रियलिटी का भी आप यूज करोगे, ऑगमेंटेड रियलिटी का भी यूज करोगे, एआई का भी यूज करोगे। अब उसके लिए आपको एआई का एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है, यू शुड नो, एक किताब पढ़ लो अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट विल गिव यू द बज़वर्ड्स, कोर आइडियाज। तो आपकी इमेजिनेशन जो अभी आप ग्रीक माइथोलॉजी में उसमें रहते हो, टेक्निकल माइथोलॉजी में चली जाएगी, और यू विल स्टार्ट इमेजिनिंग एंड स्ट्रक्चरिंग थिंग्स देयर। तो यू डेफिनेटली यस, आप वो फील्ड हो जो हर फील्ड के लिए में काम कर सकती है, वेदर इट्स एविएशन, इट्स एरोस्पेस, रॉकेट साइंस। एलॉन मस्क क्या कर रहा है, उसकी सारी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के ऊपर सब प्राइस ऊपर चला जाता है। So this is something you have to understand. Sarah, any other question? Yes, sir. There is another question from Fubab. Joseph, He's saying that technology is more dominant in terms of screen projection of visions rather than words ये मैंने nowadays. बता दिया है बोला, people want to visualize material, that's true, or amalgamation of written work with screen industry or keeping the platform written and teach visualize projection, ये सब बातें ठीक है। कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जिसपे I will prefer कि डॉक्टर शमान should look into it। मैंने सिर्फ एप्लीकेशन साइट बतानी है इसकी कि अगर CGI बेस्ड भी मूवी है ना जो बहुत सारी बन रही हैं, ये एनिमेशन बेस्ड है, it still needs a compelling story and who are the story writers, ये आपने देखना है, राइट? और उन्हीं नॉवेल्स के ऊपर गॉडफादर भी मूवी बनी, उस पे आप सोचो, गॉडफादर की आप बुक्स पढ़ो या आप किसी की लाइफ हिस्ट्री पढ़ो, जैक वेल्च की जी में वो क्या करता था, थोड़ा टेक्निकल लिटरेचर, थोड़ा डिजिटल, थोड़ा आर्टिकल किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं, आपके पास इमेजिनेशन है, नॉलेज है, वर्ड्स हैं, आपको करना क्या है, सिर्फ आपने आर्टिकल्स पढ़ने हैं कि उसमें दुनिया क्या कह रही है। आर्टिकल में क्या होता है कि 10 किताबें एक बंदे ने पढ़ी हुई होती है, उस पर आर्टिकल लिखता है तो वो आपको कंसोलिडेटेड कैप्सूल दे देता है, एंड देन यू कैन यूज योर ओन इमेजिनेशन कि इसको मजीद इसके मुझे बाय प्रोडक्ट्स कैसे बनाने हैं। तो दिस इज द अप्रोच यू शुड टेक। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ना आपको बताता हूँ कि आपने कोई किताब लिखनी है या लिखा है, या स्क्रीन या थिएटर या ड्रामा, जो बहुत सब नीड्स इमेजिनेशन। तो मैं कुछ नोट्स लिख रहा था अपने एक्सपीरियंस में जो मेरे आए, उसमें मैं देख रहा था कि देखो, पहली चीज जो है ना, आपके पास मटेरियल होना चाहिए। मटेरियल आ गया, दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग एक्चुअली। जब मैं एंगेज करता था कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट को, हमारा मटेरियल क्या है, वेयर वी स्टैंड टुडे। जी there is Miss Atifa. She has raised the hand. She wants to make some comment. जी प्लीज, थोड़ा सा आतिफा जोर से बोलिएगा। जी sir, can you hear me? Am I audible to you? Yep, you are. Thank you so much, sir. It's been a wonderful session और बहुत अच्छी discussion जा रही है। I just wanted to add कि आजकल तो जो fields हैं वो multidisciplinary हैं
और Correct. जरूरी नहीं है कि अगर हमारी डिग्री किसी एक फील्ड में हो तो हम किसी दूसरी फील्ड में जा नहीं सकते। तो ये देखने के लिए कि हम कैसे स्किल्स गेन करें या कैसी वर्कशॉप्स अटेंड करें, कैसी कुछ ट्रेनिंग्स लें कि हम अपनी फील्ड को, अपनी जॉब की फील्ड को भी मल्टी डिसिप्लिनरी बना सकें, अगर आप इस पे थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें। अच्छा, मल्टी डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन हमारा कोर ऑफ द हार्ट है और उसके ऊपर हम बहुत कोशिश कर रहे हैं यूएमटी में ये चीज़ लॉन्च करने की। और मैंने कुछ आपके लिए एग्जांपल्स भी बनाई हुई हैं वैसे, बिकॉज आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। मैं इसी तरफ चल पड़ता हूँ। देखो, मल्टी डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन को थोड़ा सा आप समझ लो और फिर आप खुद ही कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट का रोल समझ लेना। मैं एक आईटी का स्टूडेंट हूँ और वेरी गुड एट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड मैं प्रोग्राम्स बना सकता हूँ। मैं किसी भी मशीन को एनेबल कर सकता हूँ थ्रू कोडिंग कि ये क्या करेगी। इसको बोलते हैं प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोल, पीएलसी मैंने बना दिया है। उसके थ्रू ये रोबोट चलेगा। आपने दबा दिया 10 फीट आगे जाओ तो आगे 10 फीट आगे जाएगा। मैं दबाया कि 5 फुट लेफ्ट हो 5 फुट लेफ्ट हो जाएगा। राइट, मेरे सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। मैंने साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सहारा लिया और मैंने एक रोबोट बना दिया और पीएलसी बन गया और ये सब कुछ हो गया। अच्छा, अब who is going to tell this story to the world कि you have done this invention, for example? So some communication specialist has to come. He has to then introduce the subject, the authors, the designers और कैसे इसको पिच करना है। पिचिंग वो इंजीनियर नहीं कर सकता, सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। You need a communication specialist with a flavor of marketing and थोड़ा उसमें वो marketing पिनाश का जज्बा भी हो, पफरी अच्छी create कर दे। वो let's be honest about the world today, right? थोड़ी पफरी भी create कर सकता हो and you can buy into the imagination of your clients. अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, थोड़ा सा मैं specific कर लेता हूँ। मैं एक चीज यहाँ पे अपने नोट्स में लिख रहा था कि जो मैं जो एक था कि हम काफी काम करते हैं। सारा इज विद मी इन आवर प्रोजेक्ट्स जिसपे हम बच्चों को इंक्यूबेटर्स में लेके जाते हैं। न्यू स्टार्टअप के ऊपर हम बहुत काम करते हैं उनके साथ। अच्छा, अब मैं आपसे एक केस, आई वाज ट्राइंग टू राइट अ केस, थोड़ा सा मैं बात करता हूँ आपसे। अच्छा, इनोवेशन में बहुत सारे लोग हैं, काम करते हैं और बहुत सारों को फंडिंग नहीं मिलती। एवरेज एज ऑफ अ सक्सेसफुल स्टार्टअप इज 42 years। ठीक है। अच्छा, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, मैं गया, मुझे इन्वेस्टर्स कहते हैं हमने नहीं आपको इन्वेस्ट करना। अच्छा, फिर क्या करना है? व्हाई दे आर सेइंग नो? वो क्या फैक्टर्स देखते हैं? तो जो इन्वेस्टर होते हैं ना, वो ये देखते हैं यार मैं 100 रुपए लगा रहा हूँ, मतलब वो बाकी बातें, सोसाइटी, माहौल, आई वांट टू पे बैक टू द सोसाइटी, वो सब एक तरफ है। जो 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 ब्रास टैक्स है, जो ट्रू रियलिटी है, अगर मैं 100 रुपए लगा रहा हूँ, मुझे मिलना क्या है और कब मिलना है, एंड व्हाट आर द चांसेस आई विल लूज दिस मनी। तो दे आर बेटिंग द पर्सन, नॉट द प्रोडक्ट। अच्छा, वो पर्सन अगर अकेला है तो दे आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट। अगर वो एक ग्रुप ऑफ 4-5 पीपल है तो दे नो कि वो अगर एक आगे पीछे भी हो जाता है, देयर इज अ टीम, देयर इज अ स्ट्रक्चर, ये वो, यू हैव टू फील कंफर्टेबल विद योर मनी। लाइकवाइज आई हैव टू फील कंफर्टेबल विद द पर्सन हु इज गोइंग टू हैंडल माय कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी इन माय जो भी मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो जो असल चीज आई ना कि व्हाई पीपल फेल टू रेज द फंड, उसमें एक ही आया कि दे डोंट हैव अ कंपेलिंग स्टोरी, क्योंकि उन्होंने रिसर्च नहीं की हुई, उन्होंने उसके ऊपर कोई बिल्ट अप टू द ग्रैंड फिनाले जैसे लफ्ज यूज होता है ना, कोई बिल्ट अप नहीं किया। मीडिया में कोई आर्टिकल लिख देते, डिजिटल मीडिया पे चढ़ा देते, मुफ्त है। एंड फिर वो जो भी चीज आपकी है वो क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है। अब आप लोगों ने हिस्ट्री भी पढ़ी हुई है, डिफरेंट कल्चर्स पढ़े हुए हैं, ठीक है, और आपको पता है उस जमाने में ये प्रॉब्लम आई थी, उधर ये प्रॉब्लम आई थी। कुछ प्रिडिक्ट भी आप कर सकते हो, कैंडिडेटली स्पीकिंग, इफ यू आर रीडिंग आर्टिकल्स। थोड़ा सा गूगल ने तो बहुत काम आसान कर दिया। गूगल तो कहता है हमारी मिशन स्टेटमेंट यही है, वी कनेक्ट पीपल विद इंफॉर्मेशन। ठीक है, आगे इंफॉर्मेशन का क्या करते हैं, दैट इज नॉट आवर एरिया, दैट इज योर प्रॉब्लम। अच्छा, अब आपको इंफॉर्मेशन उन्होंने दे दी है, नाउ यू आर मूविंग फॉरवर्ड, और उस पे अगर एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट आपके साथ पहले दिन से होगा ना, तो वो आपकी स्मॉल ब्लॉगिंग, ये वो लिंकिंग, सोशल कैपिटल डेवलपमेंट करना शुरू कर देगा। सोशल कैपिटल आपका डेवलप हो जाता है तो इनोवेशन कैपिटल को फंडिंग भी मिल जाती है।
Because social capital क्या है? You have a lot of like-minded people who are supporting your vision, your thought, your innovation. तो इतना critical role है communication specialist का, चाहे वो लिटरेचर से हो, चाहे वो लिंग्विस्टिक साइड से हो, he knows the art of communication. और आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन जिसके पास है, he can sell anything, चाहे बस में चूरन बेच रहा हो, चाहे वो बंदर चाह के कुछ और बेच रहा हो, जो हम देखते रहे हैं, राइट? अच्छा, फिर एक चीज जो मेरी रिसर्च में भी आई कि एक रिसर्च है suggests interplay between who you are as an individual, which is human capital, right? Who you are as an individual, who you know with expertise. ये आपने जरा बातें याद कर लेनी, ये मैंने बड़ी मुश्किल से इंग्लिश लिखी है. I was stuck. अच्छा, social capital and what you have done to warrant a reputation for innovation, your reputational capital. तो कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट ने क्या करना है? अगर मैंने आज स्टार्टअप करना है, हमारे बच्चे कहते हैं जी हमने स्टार्टअप करना है, और पहले दिन से वो कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट को ले लेते हैं, तो उसे क्या करना है? उसने पहले ह्यूमन कैपिटल क्रिएट करवाना है, फिर सोशल कैपिटल क्रिएट करवाना है, उसके बाद रेपुटेशनल कैपिटल बिल्ड करवाना है, विच विल हैव अ मल्टीप्लायर इफेक्ट, जिसकी वजह से फंडर भी फंड कर देगा, आपका प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे. एप्पल ने गाड़ी बनाई, अभी तक बनी नहीं है. एप्पल इज नॉट अ कार मेकर, बट व्हाट इज हैपनिंग कि ऑर्डर आने शुरू हो गए. ट्रक बनाना है, एलॉन मस्क ने, अभी बना नहीं है, ऑर्डर बुक हो गए हैं. स्पेस पे जाना है, अभी बना नहीं है, ऑर्डर पैसे लोगों ने डाल दिए हैं. ठीक है, ये सारी चीज किया है इस कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी. स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होती है बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन, और जब आप कम्युनिकेशन में बहुत डीप जाते हो तो एक उसमें जो लोगों ने रिसर्च किया कि अगर इकोनॉमी का वर्ड बहुत ज्यादा इमर्ज होना शुरू हो गया है वेबसाइट पे या अखबारों में या इधर, दिस मीन्स स्टॉक बेच के निकल जाओ. क्यों? बिकॉज इकोनॉमी इज गोइंग टू क्रैश, हिस्ट्री सजेस्ट देम, राइट? अच्छा, और इकोनॉमी का लफ्ज क्यों आता है बहुत ज्यादा आपके माइंड में? इसलिए बिकॉज यू सफरिंग फ्रॉम इट. अगर बहुत अच्छी चीज होती तो आप लिख रहे होते इसके बारे में, तो 4 लोग लिख लेते, लेकिन 300 लोग ना लिखते. जब 500 लोग इकोनॉमी के ऊपर लिखना शुरू करते हैं, तो दिस मीन्स इकोनॉमी इज अंडर थ्रेट. तो इकोनॉमी से रिलेशन किसका है? स्टॉक मार्केट का है, बिजनेसेस का है. उन तमाम चीजों को आपने देखना है और आपने फिर क्राइसिस मैनेजमेंट कम्युनिकेशन पे काम करना शुरू कर देना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड, तो आपने आर्टिकल्स पढ़ने हैं, यू हैव टू स्टे अब्रेस्ट ऑफ द नॉलेज, और उसके हिसाब से आपका करियर बिल्ड करना है. तो आई थिंक मैं अब और भी मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन वी आर ऑलरेडी 55 मिनट हो गए, आप लोग बोर ना हो गए हो. तो इफ आई क्विकली रन डाउन, ये तो करियर्स जो टॉप पेइंग करियर्स हैं वो हैं जिसमें आप अपनी इमेजिनेशन यूज करोगे और थोड़ी सी फिक्शन क्रिएट करोगे, साइंस फिक्शन टाइप, और फिक्शन राइटर्स को बहुत आगे मौका मिलेगा. जो लिंग्विस्टिक्स के लोग हैं ना, वो कुछ लफ्ज ऐसे उठा सकते हैं जिससे वो पूरी स्टोरी बिल्ड कर सकते हैं. मैं एक वो आपकी वो देख रहा था जो So there are some few questions as well. जी जी बोलें. There is a FIFA and she is asking that I'm student of literature and can I have a career in journalism? Then there is another question from Ehsan Malook. He's saying, sir, I'm getting you. You are totally right, but many of scholars suggest us not to be multitasking. Just focus on your field, otherwise you will lose both sides. So respected sir, how can we get rid of from this confusion? There is another observation from Alishba Amjad. She's saying, sir, as you told, many opportunities related to receptive skills, writing, for example, writing. Kindly tell some opportunities related to speaking skills, for example, motivational speaker. ओके, एक्सीलेंट. पहला क्या था कि वो She was asking that I'm student of literature, can I have बाउंड्रीज. ओके फाइन. देखो, मल्टीटास्किंग का थोड़ा सा मैं आपको 1 मिनट बताऊंगा होता क्या है. मल्टीटास्किंग बहुत सारे लोग कहते हैं हम नहीं कर सकते. अच्छा, मल्टीटास्किंग कोई भी नहीं कर सकता. मल्टीटास्किंग पता क्या है? उल्टे हाथ से मैं खाना पका रहा हूँ, सीधे हाथ से मैं किताब कागज चेंज कर रहा हूँ, मतलब दोनों हाथ दिमाग हर चीज इधर उधर. टेक्निकल डेफिनेशन मल्टीटास्किंग की ये है. अच्छा, मल्टीटास्किंग है क्या? आप अब उससे हट जाए प्योर टेक्निकल डेफिनेशन से. मल्टीटास्किंग ये है, यू कैन डू मल्टीपल टास्क. आप एक डायमेंशन आती है, एट द सेम टाइम
or in different times. At the same time, answer is no, you cannot do it. Human being is not designed for that. लेकिन क्या ह्यूमन बीइंग जिसके लिए डिजाइन नहीं हुआ वो काम नहीं कर रहा? फॉर एग्जांपल, ह्यूमन बीइंग इज नॉट मेंट टू फ्लाई. क्या वो उड़ नहीं रहा? क्या हवाई जहाज में नहीं जा रहा? अच्छा, उसके बाद क्या है कि मल्टीटास्किंग आप कर सकते हैं. टाइम. अच्छा, अब क्या है, आपके कोर डोमेन है. ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू आर्किटेक्ट योर करियर. आर्किटेक्ट कैसे होता है? आपकी करियर का आर्किटेक्चर क्या है? आपकी एक कोर है, व्हिच कुड बी एनीथिंग, राइट? कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है. आपकी आउटलाइन में स्टैटिस्टिक्स भी है, कंप्यूटर्स भी है, और भी बहुत कुछ है, लिंग्विस्टिक्स, बहुत कुछ है. मैं देख रहा था अभी. अच्छा जी, वो कोर एक सेट हो गया आपका. अब आपका पैशन किस तरफ आपको लेके जाता है? यार मुझे इसमें बड़ा मजा आता है मरीन बायोलॉजी में, तो आप उस पर आर्टिकल्स पढ़ना शुरू कर देते हो. कोर आपका कम्युनिकेशन है, यू नो हाउ टू राइट. आप मरीन बायोलॉजी पढ़ना शुरू करते हो, अपनी इमेजिनेशन आपकी उसमें चलना शुरू हो जाती है, एंड यू स्टार्ट राइटिंग इट. तो अपने कोर को जो आपकी पैशन के साथ जोड़ लोगे ना, कुछ लोग हैं जिनकी कोर कम्युनिकेशन ही है, एंड दे वेरी गुड इन विजुअलाइजेशन, इन इमेजिनेशन, इन राइटिंग, इन कम्युनिकेशन. वो क्या करते हैं कि एक आर्किटेक्चर में बहुत शौक है जी, उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, और उसमें फिर नई डायमेंशंस निकालना शुरू कर देते हैं. बिकॉज आपका जो डोमेन है ना, बाउंड्री लेस है, ठीक है? उस पे अगर लफ्ज नहीं है तो आपने एक नया लफ्ज बना लेना है. अभी फॉर एग्जांपल मैं जो एक देन मोटिवेशन, देखो स्पीकिंग स्किल तो होनी चाहिए. अनलेस यू कैन टॉक, पीपल विल नॉट लिसन, दे विल नॉट अंडरस्टैंड, उनको पता ही नहीं चलना. तो वो तो आपके आई एम श्योर रोड मैप का भी हिस्सा होगी, और वो सब कुछ साथ साथ चल रहा होगा. एक फॉर एग्जांपल मैं आपसे मैं देख रहा था कि आपकी डोमेन की जो रोड मैप्स हैं वो सब तो मुझे नहीं मिले, लेकिन क्विकली मैं एक चीज उसमें मैंने पिक की थी. बोल देती हूँ. Umar, I will appreciate if you can drop your question in the chat section because we are running short of time. So आप chat में अपना question drop करते हैं. Thank you. अच्छा, मैं थोड़ी सी एक बात कर लूँ, बिकॉज 12 बज गए हैं. ये मैंने असल में आई वॉज रियली थिंकिंग कि मैं कुछ ओरिजिनल क्या बात इनके साथ और कर सकता हूँ. तो देखो, अभी आपको जो बात समझनी है ना, थोड़ा सा आप कॉन्टेक्चुअल होते हैं एक डोमेन में. अभी पाकिस्तान में या दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान को आप देख लो. 165 मिलियन यूजर्स हैं जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं. ये डाटा मेरे पास है. एक्टिव सेलुलर यूजर 87 मिलियन है, और जिनके पास ब्रॉडबैंड भी है. 64 पॉपुलेशन अंडर 29 जो है ना, वो फेवरेबल डेमोग्राफिक्स हैं, ई मर्चेंट्स हैं, फेसबुक के, और ये सब चीजें हैं, ठीक है? अच्छा, ये वो है जिसको हर शख्स टारगेट कर रहा है कि यार मैं इस मोबाइल फोन के थ्रू कैसे काबू करूं. ओके, मैं ये सामान बेचता हूँ, एज ब्रैकेट ये है, तो मुझे किस वक्त क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए. तो उस सब के ऊपर कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी चाहिए होती है जो आपकी डोमेन है. फिर मैं एक और जो चीज आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि अपनी इमेजिनेशन को आपने नहीं रोकना, वो ये डॉक्टर शाबान मेरे से बहुत अच्छा आपसे वो पढ़ाएंगे, सारी बात करेंगे. वो है स्पेस लैंग्वेज. कि आपने स्पेशलाइज करना है ना, तो अपने आप को उस टॉपिक से, उस चीज से कितना डिस्टेंस करना है, और कितना कनेक्ट करना है, और मेरे लिए क्या एम्पैथी क्रिएट करनी है अपने मैसेज में कि मैं कनेक्ट हूँ. अच्छा, अब इसमें आप चाहे मोटिवेशनल स्पीकर हो, चाहे स्पीच राइटर हो, चाहे कंटेंट राइटर हो, चाहे आप कोई टीचर हो, या कोई भी हो, यू विल एक्सेल. तो स्पेस दूसरों को देनी है, खुद भी लेनी है, एंड स्टे आउट ऑफ द बाउंड्री. और जो एक हर चीज का कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स भी हैं, उनको भी अकोमोडेट करना है. एंड अब मैं यहाँ पे खत्म कर लेता हूँ. आई थिंक अभी तो बातें जो है ना, वो आपका पर्सनल मार्केटिंग प्लान पे मैं जा रहा था, हाउ टू मार्केट योरसेल्फ. इट विल टेक 1 आवर, बाद में कर लेंगे अभी, क्योंकि मेरा सेशन दूसरा भी है. तो अच्छा, अभी इसमें सिर्फ मैं आपको एक वर्ड ऑफ एडवाइस दूंगा कि डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ. अपने आप को डिफाइन करो, अपनी पर्सनल डेफिनेशन एक क्रिएट करो, हु आई एम, ठीक है, एंड व्हाट आई कैन डू, हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट. फॉर एग्जांपल, कोई कंपनियां को बहुत अच्छी लगती होगी, किसी को कॉस्मेटिक्स की, किसी को कार की. अच्छा, उस कंपनी के साथ अगर मैं अटैच हो जाऊं तो मैं उनके लिए वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकता हूं.
उनकी शेयर प्राइस कैसे ऊपर लेके जा सकता हूँ बाय क्रिएटिंग एक्सीलेंट आर्टिकल्स। ठीक है, पब्लिक रिलेशनिंग इज अ बिगेस्ट बिजनेस। दुनिया में कंपनियां जो सिर्फ पब्लिक रिलेशनिंग करती हैं, जो मेरे बिहाफ पे लॉबी करती हैं, मेरे बिहाफ पे मीडिया मैनेज करती हैं। ठीक है, लॉबिस्ट का रोल बहुत अच्छा आप लोग प्ले कर सकते हो। तो अपने आप को अपने बाउंड्री से बाहर निकाल देना है, बिकॉज लैंग्वेज किसी बाउंड्री में आपको नहीं फंसाती, वो बाउंड्री से बाहर निकालती है। इट मेक्स यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड यू आर लकी टू बी दिस डोमेन। अब सिर्फ आपने अपना एक पर्सनल बिजनेस प्लान बनाना है, पर्सनल ब्रांडिंग स्टेटमेंट बनानी है। हम एक सेशन और रन कर देंगे आपके साथ, एंड हाउ टू डू इट एंड हाउ टू पिच योरसेल्फ इन द इंडस्ट्री। जब मेरे पास आपका सीवी आया, उस पर ये ना लिखा होगा जी मैंने बीएस कम्युनिकेशन या ये या वो किया हुआ है, नो नो नो, वो तो किया हुआ डिग्री है आपकी, नो प्रॉब्लम। आपने जो अप्लाई करना है, तो आपने ये बताना है कि जो भी आपने पढ़ा है उससे आपकी कोर स्किल क्रिएट हुई है, हाउ इट अप्लाइज टू माय बिजनेस एंड हाउ विल यू मेक मी अ विनर और बीट कंपटीशन और फाइट क्राइसिस, रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज क्या होंगी। मैं तो वो जब आप लेके आओगे, तो यू आर ब्रिंगिंग इन एज एंटरप्रेन्योरियल पर्सन with a brain and with a core whereby जो भी आप बात मेरे से कर रहे हो ना, you can talk to the public at large. So thank you very much. If there are any questions, please feel free to ask. I have 5 more minutes. कोई issue नहीं है. So Sarah, if there are any questions, I'll be happy to take them. Umar, you can ask your question directly now. Umar, are you there? Okay, so basically, he wanted to ask that what advice you would like to give to a writer who has jumped the gun, found no interest in blog writing, etc., and wants to get their novel out into the world. Should they focus on catering to the audience or focus on telling their own story? Is it even an either or? ये कहाँ पे question? Can I read it? Okay, I'm sending you this. There was another question from Afifa. She was asking that I'm student of literature. Can I have careers in journalism? Absolutely. Journalism को आप definition तो पढ़ो. What is journalism? Journalism में क्या हो रहा है? एक journalism है which is yellow journalism. ठीक है? एक है journalism reporting of facts. एक journalism है जिसमें अगर आपका अगर इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में है, उस डोमेन को पकड़ लो और जर्नलिज्म में आ जाओ। तो आपके इस तरह के जो सवाल है, वी आर हैप्पी टू रन स्पेसिफिक पर्सनल सेशंस आल्सो कि हाउ दे रिलेट टू द डोमेन जिसमें आप जाना चाहते हो। जर्नलिज्म में ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि हम जाके एंकर बन जाएंगे। जर्नलिज्म इज नॉट अबाउट एंकरिंग, राइट? जर्नलिज्म तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके पास एज अ स्पेशलिस्ट पर्सन इन कम्युनिकेशन इन लिंग्विस्टिक्स, एंड आप तो यू कैन क्रिएट वंडर्स, यू कैन रियली लिव द ब्रांड इमेज ऑफ पाकिस्तान। आप में तमाम चीजें हैं, सिर्फ ये है कि एक डायरेक्शन सेट करनी है एंड यू हिट फॉर द स्टार्स, आप चांद तक पहुंच जाओगे। तो व्हाट योर एडवाइस वुड बी टू a novice writer who has jumped the gun or no interest in blog writing, etc., and wants to get their novel out in the world? Should they focus on catering to the audience, focus on telling their own story? Dekho, who is interested in your own story? Tell me very honestly speaking. Unless you are a known celebrity, आप Elon Musk हो ना, तो I'll buy your book. I'll pay $100, $200. ठीक है? You और खालिद ने की, nobody is interested यार, but ठीक है, होगा कोई, हम क्या करें इसका, right? तो जो सेल्फ लोग ऑब्सेस्ड हो जाते हैं ना कि आप अ वेरी कंपेलिंग पर्सनल स्टोरी, अपनी पर्सनल स्टोरी भी आपने सुनानी है, यू थिंक इट्स वेरी कंपेलिंग, क्रिएट कैरेक्टर्स आउट ऑफ इट, किसी और के नाम पे रख के चला दो एंड एक फिक्शन क्रिएट कर दो। और उसमें मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, अगर कोई पर्सनल कंपेलिंग स्टोरी है, आप उसका एक आउटलाइन बना लेते हो ना, तो उसमें फिर आप इमेजिनेशन यूज करके वो चीजें डाल सकते हो कि आप क्या चाहते थे, क्या हो जाता, कैसे हो जाता, वो फिलर्स हैं। और वो ऐसी स्टोरी बन जाएगी कि विच विल बिकम साइंस फिक्शन, विच विल बिकम योर फिक्शन, विच विल बिकम योर स्टोरी। और जो मिसिंग लिंक्स थे आपकी लाइफ स्टोरी में, जिसकी वजह से आप यू थॉट यू आर टू सेंसिटिव एंड यू वांट टू टेल द वर्ल्ड अबाउट योर मिसफॉर्च्यून्स और व्हाटएवर, आप जरूर बताएं। लेकिन फिर क्या है कि उसके साथ एनेक्डोट भी साथ लेके चलें और वो आप उसमें आप फिक्शन ऐड करते जाएं और थोड़े से इफेक्ट्स डाल दें डिपेंडिंग अपॉन किस एज ग्रुप को आप हिट करना चाह रहे हो, राइट?
So there is another question from Hurab Salim. What can we do to ensure that even if we write in English, we do enjoy the same public access that Urdu writers do in our country without encountering any linguistic barrier or sense of alienation? We feel as if we would only be catering to a certain sector by writing in English. Our choice of language might ठीक है, I overshadow got the our question. I storyline. got, देखो जब आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हो ना, तो प्लीज अगेन जो मैंने कहा था ना, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. यू आर अ ग्लोबल सिटीजन, यू कैन कनेक्ट विद द वर्ल्ड. दुनिया में 20% लोग इंग्लिश बोलते हैं. ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, यूरोप में आप देखो, लंदन में देखो, 20% पॉपुलेशन बहुत बड़ा नंबर है. ठीक है, 2 अरब लोग इंग्लिश बोलते हैं और अच्छी इंग्लिश बोलते हैं. उसके अलावा दुनिया के हर मुल्क में यू हैव योर ऑडियंस अवेलेबल. आपने अगर किसी मुल्क के बारे में बात करनी है, उस मुल्क का कल्चर उठाओ, उसको टारगेट करो, उसके बारे में लिखो, इंग्लिश में लिखो, यू विल फाइंड ऑडियंस. तो इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है. उसमें पाकिस्तान की बाउंड्री को अगर आप देखोगे तो फिर उर्दू में ही लिखो, सीधी सी बात है. आई खुद एग्री विद यू, राइट. लेकिन यू गाइस आर बाउंड्री लेस, यू आर इंटरनेशनल सिटीजन्स. आपने डिफाइन करना है अपने आप को. देखो, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जो लिंग्विस्टिक्स के, लैंग्वेज के, लिबरल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स और इस तरह के जो आर्ट्स के लोग हैं ना, आर्ट्स ही तो दुनिया का ड्राइवर है. आप लिबिया जाओ, वहां पे 300 BC की इन्होंने एक शहर खोद के निकाला हुआ है. आई वाज लकी एनफ टू सी दैट सिटी. इट्स ऑल अबाउट कोलोसियम्स, थिएटर्स, आर्ट सेंटर्स. पानी के नाले भी डले हुए हैं, सीवरेज लाइंस भी है, स्विमिंग पूल भी है, पूरी लाइफ है. एंड फोकस किधर है? कहाँ से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने लोगों से? दे आर यूजिंग थिएटर एंड ड्रामा एंड दोज कोलोसियम्स के वहां पे आओ और लिसन टू द किंग. हमारा जुमे की मस्जिद का होता है, वो क्यों होता था खुतबा के पूरा शहर, जुमे की नमाज एक ही मस्जिद में होती थी, तो लोग जाके सुने कि बादशाह ने क्या कहना है मुल्क में. व्हाट आई एम सेइंग इज कम्युनिकेट, जो उसको बोलते हैं ना. आपका तो मैसेज या कम्युनिके, एनी अनाउंसमेंट, एनी पाकिस्तान खेलना है अगर, तो उर्दू में ही खेलो. फिर पंजाबी इवन बेटर आई वुड से, क्योंकि आप जब सेगमेंटेशन करते हो 20 करोड़ आवाम का, 60% पंजाब, तो बिगेस्ट सेगमेंट यही है, तो फिर इस तरफ आ जाओ, राइट. एंड लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में तो यू आर अ ग्लोबल सिटीजन, यू आर टॉकिंग अबाउट 2 billion plus people, straight market segment, which is huge. Now, how you capture it? आप क्या imagination at work लेके आते हो, किस इंडस्ट्री को टारगेट करते हो, किससे अलाइन करते हो? वो आपका पैशन हो सकता है, आपके म्यूजिक के पैशन हो, गिटार का शौक हो, यूज योर स्किल्स देयर एंड उसी चीज को प्रमोट करो. तो वी आर हैप्पी टू रन इंडिविजुअल सेशंस इफ यू वांट. तो वो सारा के साथ आप रजिस्टर कर लेना. अगर कोई क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है तो आई एम हैप्पी टू टेक इट. लेट्स क्लोज इन 2 minutes. So apparently, okay, there is one सारा more एक question. सवाल मैं सुन रहा था जो बच्चों ने किए थे कि कवर लेटर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सीवी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. तो उसका मैं क्विक एंड शॉर्ट आंसर दे देता हूँ. डिटेलिंग कभी हम बाद में भी कर सकते हैं. देखो, आप आजकल जो नौकरियां आ रही है ना, उस पर ऑनलाइन आती हैं और वो उसमें कहते हैं सीवी अपलोड कर दें. अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी कवर लेटर भी लगाएं. उन्होंने लिखा हुआ होता है. अच्छा, कहीं आप अप्लाई करते हो तो उनके इश्तिहार में लिखा हुआ होता है कि अपना कवर लेटर भी हमें चाहिए आपका. अच्छा, अगर आप, और कईयों ने नहीं लिखा हुआ था, दिस आस्क फॉर योर सीवी. अच्छा, अगर आप अनसोलिसिटेड एप्लीकेशंस भेज रहे हो, तो अनसोलिसिटेड मींस यार यू आर इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग सुजुकी मोटर कार कंपनी और वहां पे मुझे अपना सीवी डालना है. तो अब आपका इंग्लिश लैंग्वेज का या लिटरेचर का या लिंग्विस्ट जो भी आपका कोर कॉम्पिटेंस है वो तो उसमें लिखी हुई है. अब हाउ इट रिलेट्स टू सुजुकी, तो आपने कवर लेटर भी साथ लगा देना है कि what value will you create through the core domain, through your knowledge of your domain, and what impact can you create for Suzuki, but it should be short, concise, one paragraph. पढ़ता कोई नहीं otherwise, right? तो ये आपने बड़ा ख्याल कर लेना. अनसोलिसिटेड में तो लाजमी चाहिए, और जहां सोलिसिटेड भी हो, वो अगर कवर लेटर आपसे मांग रहे हो, ठीक है, तो आपने उसमें लाजमी कवर लेटर छोटा रखना है और जो आपकी पंच लाइन है, व्हाट यू हैव टू सेल, वो उसमें कर देने हैं. अच्छा, आज आप सुजुकी में अप्लाई कर रहे हो, कल आप बोइंग में अप्लाई कर रहे होगे, परसों आप किसी और जगह अप्लाई कर रहे होगे, कोका कोला में, नेस्ले में, कहीं पे. उस कंपनी के रेफरेंस से आपकी कॉम्पिटेंस कैसे अटैच होती है एंड व्हाट वैल्यू यू कैन ऐड,
वो आपने उस पंच लाइन अपनी बहुत अच्छी लिख देनी है कवर लेटर में, अदरवाइज ना लिखना कवर लेटर, यू नो, अदरवाइज इट्स अ ट्रैश। तो और वो इतना विजिबल हो, नाइसली प्लेस्ड हो कि इजी ऑन द आईज, और वही चीज आपकी पर्सनल ब्रांडिंग स्टेटमेंट में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो ये आई थिंक एक मैंने बड़ा कंफ्यूजन देखी थी लास्ट सेशन में, तो आई होप दैट इज क्लियर नाउ। Okay, so one last question, because we can have a follow-up session in the coming week, because we are running short of time. So Khubaib, we can answer and we can take your question in the next session. So there's a question from Alashba, and she's asking, there are many institutes like higher educational sectors demand MPhil. So why not we do jobs with BS degrees only? देखो वो तो रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात आ जाती है कि एजुकेशन के रेगुलेशंस क्या हैं, HEC क्या कह रहा है, लेक्चर के लिए एमफिल होना जरूरी है बिकॉज रिसर्च ओरिएंटेशन होना चाहिए, और वो तो रेगुलेटरी मामलात हैं, उसमें आई डोंट वांट टू कमेंट व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन ये है कैंडिडली स्पीकिंग, इफ यू आस्क मी, जिस तरह हर चीज डिस्टर्ब हो रही है, टीचिंग विल आल्सो गेट डिस्टर्बेड। हमारा तो पूरा उसके ऊपर एक सेशन है वूका का, अगर आपने देखना हो तो सारा आपसे लिंक शेयर कर लेंगी, आप देखेंगे उसमें हमने बड़ी क्लियर मैसेज दिया है हाउ एजुकेशन इज गोइंग टू गेट डिसरप्टेड because of the vulnerable, uncertain, complex and ambiguous times, and unfortunately very few people are preparing for it, to manage it, to mitigate the risk. तो हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी क्या थी कि हमने देखा कि एक चैलेंज दुनिया में आने वाला है, हम एकेडेमिया में हैं और बाकी भी चीज़ें हैं, तो हमारा फर्ज बनता है सबको हम कम्युनिकेट करें। हमने कैसे किया, हमने उसमें प्रोज यूज़ किया, पोइट्री यूज़ की, थोड़ी सी हमने उसमें आर्ट्स भी यूज़ किया, और एक स्टेज के ऊपर हमने उसको रन किया विद सम सिंबलिज्म्स टू मेक पीपल अंडरस्टैंड, एंड इट वाज वेरी वेल टेकन। उसकी कुछ वीडियो है हमारे पास, वो सारा आपसे शेयर कर लेंगे। सारा प्लीज डू दैट। Okay, one last comment, and that after that we'll close the session. Khubaib has said that technology is doing justice with the catharsis of emotion or not. देखो, इमोशंस एंड कैथारसिस और तीसरी पैरामीटर, तीन वेरिएबल्स टच कर दिए, इमोशनल, कैथारसिस, टेक्नोलॉजी। मैं टेक्नोलॉजी सेवी हूं ना, तो मैं तो टेक्नोलॉजी के अंदर ही अगर मैंने अचीव कर लिया आई बी हैप्पी, और नहीं अचीव किया तो आई बी वेरी डिस्टर्ब। अच्छा, जो कैथारसिस का वर्ड है ना, वो कोई पेंट अप इमोशंस आपके माइंड में या हार्ट में, जिसको हम कहते हैं, इकट्ठे हुए हैं, एंड दे नीड एग्जिट। उनको एग्जिट कहाँ से देना है? तो वो एग्जिट आप देते हो अपने पैशन से। हम लोग देसी लोग हैं सॉरी, हम लोग लड़ाई झगड़ा कर लेते, गालियां निकाल देते और ठंडे होके आगे बैठ जाते हैं। कैथारसिस को अगर देसी जबान में कहे कि ठंडे होके बैठ जाना, तो अगर मेरा पैशन है यू नो म्यूजिक, गिटार, मैं जाके गिटार में सारा गुस्सा निकाल दूंगा। एंड इसको बोलते हैं साइकोलॉजी में एक्टिंग आउट। यू हैव टू एक्ट आउट। कि आज फॉर एग्जांपल मेरे बॉस ने मुझे डांट दिया ऑफिस में, और वहां से मैं घर पहुंचा तो मैंने बच्चे को डांट दिया, वो गुस्सा उधर निकाल दिया। बच्चे ने आगे कुत्ता था उसको ठुड्डा मार दिया, वो चू करके जाके कोने में बैठ गया। तो दिस इज एक्टिंग आउट प्रोसेस, जिससे कैथारसिस हो रहा है, राइट? तो कैथारसिस के लिए तुम्हें पता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ सब्लिमेशन। जितने भी पोएट हैं उनके इमोशंस है पेंट अप, जिसको उन्होंने थ्रू पोइट्री सब्लिमेशन की है, और सटल मैसेजेस भी हैं, एंड हाउ इट ओजेस आउट ऑफ योर पर्सनालिटी। अगर आप बहुत एग्रेसिव मैच्योर हो तो आप लड़ने चले जाओगे, आप सेंसिटिव सोफिस्टिकेटेड हो तो यू विल थिंक ऑफ समथिंग एल्स। लेकिन जो भी आपका पैशन होगा, जिसमें आपका शौक होगा, उधर आप जाके अपना टाइम लगा के यू विल जस्ट किल इट आउट ऑफ योर सिस्टम। एंड इट्स ऑलवेज गुड टू गो टू योर पैशन इफ यू हैव पेंट्स अप इमोशंस। क्रिकेट खेलते जाओ, खेलो, स्पेंड 2 days देयर, एग्जॉस्ट हो किया, यू विल बी ओके। घर में झगड़ा हो गया है, फादर से मसला है, भाई से है, मोहल्ले से, हमसाए से है, सब अदर, इसको है बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है जिसकी वजह से आपका पेंट्स अप इमोशंस होते हैं, जिसको कैथारसिस चाहिए होता है। तो अब उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करना है, उसके मैकेनिज्म्स हैं, साइंस भी है, आर्ट भी है, और उसके प्लस प्लस कॉन्फ्लिक्ट भी है, प्लस माइनस कॉन्फ्लिक्ट भी है, माइनस प्लस कॉन्फ्लिक्ट भी है, एंड माइनस माइनस भी है। ठीक है, तो हाउ टू गेट आउट ऑफ दैट कॉन्फ्लिक्ट, हाउ टू टेक इट आउट ऑफ योर सिस्टम, वी आर हैप्पी टू हेल्प इफ यू नीड एनी। ऑन द अदर हैंड, ट्राई एंड फॉलो योर पैशन। जो भी सोच है जहन से करके निकाल दो, एंड रीड वन बुक। रॉन हॉलैंड की है, पुरानी किताब है, 80s 90s में, 85 90 में आई थी,
talk and grow rich. उसमें उसने कुछ exercises बताई हुई हैं, and this is not interpersonal talking. This is intrapersonal. You have to talk to your own self and then how to live your life through. Thank you very much. Assalamu alaikum. I have a next session to start, so I'll see you next time. Thank you, Sarah. Thank you, Dr. Shaban Saab. Thank you all the audience for being patient. मेरी बातें सुनना जरा कई दफा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. So I thought communication की class है, so I have to compete with them. So I thought I'm doing a good job. Thank you very much. And I just want to say thank you to the School of Institute of Liberal Arts, the way they took ownership on this session, and they ensured the participation of all the students. And I also want to thank Khalid Naki Saab for creating time for this session, and also Ms. Sadia, and and the OCLP team, the way they are supporting each other to facilitate the students in terms of their career endeavors. And I hope the students also got a lot of clarity in terms of the scope of literature and linguistics in future. And I will appreciate the Google, the feedback form that we have shared in the chat section. Has been considered by everyone, and you will be giving the feedback form, and we'll also be sharing it via email with the faculty of ILA. Thank you so very much, everybody. Thank you. Assalamu alaikum.